हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंजा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो हमारा प्योर लेटिस है, जीई और सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर लेटिस है वो प्योर है। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द डायमंड like structure. Each atom is surrounded by four nearest neighbor. We know that the silicon and germanium has four valence electron in its crystalline structure. Every silicon and germanium atom tends to share one of its four valence electron with each other for nearest neighbor atom, and also to take the share of one electron from each other neighbors. These shared electron pair are referred to as forming a covalent bond or simply valence bond. The two shared electron can be assumed to shuttle back and forth between the associated atom, holding them together strongly. तो जो भी हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के फोर बॉन्ड है वो दूसरे निगबर एटम के साथ फोर बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड और या वैलेंस बॉन्ड बना के वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। A two-dimensional representation of the silicon and germanium are figure here, and over faces the covalent bond. It shows that idealized picture in which the no bond are broken. Such situation arises at a low temperature. As the temperature increases, more thermal energy become available to this electron, and some of these electron may break away. The thermal energy effectively ionize only a few atoms in crystalline lattice and create a vacancy in the bond. यानी कि अगर हम उसके ऊपर हीट या थर्मल एनर्जी उपयोग करेंगे, उसका सप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे एटम में, हमारे क्रिस्टल में एटम की जो वैकेंसी निकलेगी, यानी कि एटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए, सराउंड में निकलेंगे तो उसकी जगह खाली रह जाएगी, यानी कि उधर वैकेंसी बन जाएगी। The whole the neighborhood from which free electron has come out leaves as a vacancy with effective charge positive. This vacancy with effective positive electronic charge is called hole. The hole behave as an apparent free particle with effective positive charge. तो जो वैकेंसी उत्पन्न होती है, जो वैकेंसी बनती है, उसके वजह से उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसको होल बोलते हैं, जिसके वजह से वो एपरेंट फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल NH, दैट इज Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस उतने ही हमारे जो होल्स है, तो Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। सेमीकंडक्टर पोजेस यूनिक प्रॉपर्टी इन विच अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन द होल ऑल्सो मूव। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होल भी मूव करते हैं। ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और दोनों के सभी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। Suppose there is the hole at site 1 as shown in the figure. The movement of the hole can be visualized. An electron from the covalent bond at site 2 may jump to the vacant site 1. After such a jump, the hole is at site 2 and site 1 has now one electron. यानी कि हमारे मूवमेंट में एक जगह होल है, एक जगह, अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके दूसरी जगह जाएगा तो उसकी जगह वैकेंस हो जाएगी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसके पास एटम के पास इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंस सीट पे जाएगा और वो उस एटम के पास वैकेंसी हो जाएगी। तो ऐसे ही शेयरिंग करते रहेंगे। Note that the electron originally set free. It is not involved in this process of the whole motion. The free electron move completely independently as conduction electron and give rise to the electron current. तो वो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है आई अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर दैट द मोशन ऑफ द होल इज ओनली द कन्वेंस वे ऑफ द डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। Whatever there is the empty bond anywhere in the crystal under the action of the electric field, this whole move toward a negative potential, giving the whole current IH, and the I is the sum of the electron current IE and the whole current IS। यानी कि जो हमारा टोटल करंट है उसकी वैल्यू IE प्लस IH, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों के मिक्सचर के बराबर टोटल करंट मिलता है। ये हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का 2D स्ट्रक्चर है। +4 लिखा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम के, फिर डॉटेड लाइन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर डॉट जो दिखाया वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है।
It may be noted that apart from the process of generation of conduction, electron and hole, simultaneously the process of recombination occur in the which electron recombined with the hole. At equilibrium, the rate of the generation is equal to the rate of recombination of the charge carrier. The recombination occurred due to the electron colliding with a hole. तो जो हमारी प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन की वो अकर करती है जब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होके विथ होल रिकम्बाइंड होके होल में जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि थर्मल हीटिंग की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला साइट 1 में से, तो साइट 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर शिफ्ट होगा, यानी इसमें लिखा हुआ है होल एट साइट 1 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं साइट 2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर साइट 1 में जाएगा और साइट 2 की जगह होल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जगह। तो ऐसे ही शेयरिंग होती रहती है। फिर इसमें फिगर में ये है कि एनर्जी गैप दिखाया गया है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड खाली है और बी है, जिसमें फर्स्ट में जो टेम्परेचर वो 0 केल्विन यानी कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। फिर सेकंड फिगर में ऐसा है कि टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है यानी कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। तो इसकी वजह से जो कंडक्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में कुछ जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उसकी वैकेंसी वैलेंस बैंड में आप देख सकते हैं। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 एंड द एक्साइटेड टेम्परेचर partially occupied conduction band. Therefore, the energy band diagram by intrinsic semiconductor will be showing some electron are in conduction band. We have come from the valence band having equal number of hole there. तो इधर आप 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में देखते हैं तो उसकी 4 वैकेंसी आपको वैलेंस बैंड में इधर 4 वाइट कलर के डॉट से दिखाई गई है। फिर है एग्जाम्पल 1 यानी कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है वो सेम लेटिस स्ट्रक्चर वाई is carbon insulator while silicon and germanium intrinsic semiconductor। तो तीनों के लेटिस सेम है तो क्यों कार्बन इंसुलेटर है और ये दोनों सेमीकंडक्टर है। तो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। लेकिन जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लीस्ट फॉर जर्मेनियम फॉलो बाय सिलिकॉन एंड हाईएस्ट फॉर कार्बन। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कार्बन के पास होती है, फिर सिलिकॉन के पास उसके कम और फिर सिलिकॉन से कम जर्मेनियम। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट बट निग्लिजिबल स्मॉल फॉर कार्बन। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के पास निग्लिजिबल होते हैं, इसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर नहीं है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर बट एट रूम टेम्परेचर इट कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो उसका कंडक्टिविटी वेरी लो रहती है। तो उसकी वजह से हमें एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का खोज करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन ऑल्सो डेवलप यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर। There is the necessary for improving the conductivity so that the making the use of impurities। तो कंडक्टिविटी लो है वो तो हम नहीं कर सकते, तो उसकी इंक्रीज करने के लिए हमने ये इम्प्योरिटी ऐड करने का सोचा। व्हेन स्मॉल अमाउंट से फ्यू पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm of suitable impurities added to the pure semiconductor, the conductivity of the semiconductor is increased modified। तो हमने प्योर जो सेमीकंडक्टर थे उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ डाली, यानी कि जो हमारा इम्प्योर है एटम वो डाला, तो उसकी वजह से हमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी मिली, यानी कि बहुत हाई मिली। दिस नोन एज द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। द डिलिबरेट एडिशन ऑफ द डिसाइरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। जो हमें इम्प्योरिटी डालते हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं। इम्प्योरिटी एटम को डोपेंट कहते हैं। Such material is also called as doped semiconductor. Dopant has to be such that it does not distort the original pure semiconductor lattice. Is occupied only a very few of the original semiconductor atom site in the crystal. A necessary condition to attain that is that the size of the dopant and semiconductor atom should be nearly the same. There are two types of dopant used in doping the tetravalent silicon or germanium। तो डोपिंग के 2 टाइप्स है, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट। और टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। पेंटावेलेंट में 5 वैलेंसी है लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। सेकंड है ट्राईवेलेंट।
जिसमें होता है 3 वैलेंसी लाइक इंडियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो वी विल डिस्कस हाउ द डोपिंग चेंज द नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर of the semiconductor. Silicon and germanium belong to the fourth group in the periodic table. We choose the dopant element from near bit with fifth or third group, expecting and taking care that the size of the dopant atom is nearly the same as the size of silicon and germanium. The pentavalent and trivalent dopant is silicon and germanium give two entirely different type of semiconductor as discussed below. तो हम वैलेंसी 3 और 4 ऐसे रखेंगे क्योंकि 5 और 3 यानी कि हमारा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वो 4 इलेक्ट्रॉन वाला है। तो हम ऐसी इम्प्योरिटी डालेंगे जिसके इलेक्ट्रॉन या 5 हो या 3 हो। अगर 5 रखेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखना है और अगर 3 रखेंगे तो एक होल ज़्यादा है। तो वैसे ही रखेंगे जिसकी वजह से हम उसमें कंडक्टिविटी बढ़ा सकें। तो उसमें 2 टाइप से एन टाइप है और पी टाइप है। इधर आप देख सकते हैं कि अनबाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय पेंटावलेंस यानी कि 5 वैलेंसी एटम। तो एक एटम आप इधर बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाद देख सकते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।